Good morning, students. Continuing with your organizing chapter, now we are moving to the next topic, that is delegation. Day before yesterday, we have studied about the organizational structure, that is functional structure and divisional structure. After this topic, again I am repeating, formal and informal organization is there in the textbook. That topic is been deleted. So directly you will be moving to the next topic, that is delegation. Now let us see what do you understand by delegation. Now all you know that it is very much impossible for an individual to handle all the activities efficiently and effectively by himself or herself. कोई भी काम अगर किसी बंदे को दिया है, हर काम वो एकदम एफिशिएंटली इफेक्टिवली वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको शेयर करने की जरूरत पड़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए आपको अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे सिंपल टेक एन एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ऑर्गेनाइज वन इवेंट सक्सेसफुली, each and every member of the group, they must have authority so that they are able to carry out their responsibility. So when you share the responsibility and the authority with each other, it is called as delegation. ठीक है। Similarly, when the volume of work is very much large, ठीक है, even for a capable manager, it is not possible to handle all the activities by himself or herself. That is, it is not possible for a manager to take the financing decision or to do the production planning or to find out the inventory control activities, to maintain the inventory levels or to manage the sales team, each and every activity or the functions of the organization. It is not possible for a manager to be capable of performing each and every activity, and to be able, so that if he wants to achieve the organizational goals and objectives and see to that whatever work is being given, it is accomplished as desired, the manager must delegate authority. So what do you mean by authority? It refers to downward transfer of authority from superior to subordinate to perform their responsibilities effectively. अगर आपको कोई भी काम करना है, ठीक है, तो आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। लोग यानी कौन? जो आपके नीचे है, ठीक है, जिससे आप आपका काम करवा सकते हो, that is termed as delegation. So here if you in the definition you see, it refers to downward transfer of authority. डाउनवर्ड ट्रांसफर का मतलब क्या है? सुपीरियर जो है, आपके सुपीरियर है या मैनेजर्स है, वो एक लेवल पे है और उनको लोगों से काम करवाना है, मतलब सबॉर्डिनेट से काम करवाना है। तो सबॉर्डिनेट कहाँ आता है? सुपीरियर के नीचे सबॉर्डिनेट्स होते हैं। तो ये जो अथॉरिटी है, सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी दे रहे हैं कि भाई ये जो काम है, ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी आपकी है। सो दैट इज नथिंग बट डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, so that the subordinates are able to perform their responsibilities effectively. Now when we are talking about downward transfer of authority from superior to subordinate, तो डेलीगेशन का मतलब एब्डिकेशन नहीं होता। एब्डिकेशन का मतलब अपना हाथ उठा लेना। ऐसा नहीं है कि सुपीरियर या मैनेजर ने बोल दिया कि भाई ये काम तुझे करना है, इसका मतलब मैनेजर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम से हट गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टिल whether the work is being done by the subordinates or not, it is the responsibility of the manager to see to it. So manager will be held as accountable to see whether the work has been done by the subordinates or not. So delegation of authority, it is a very much important for effective functioning of the organization. इससे मैनेजर्स के लिए क्या फायदा होगा डेलीगेशन का? कि हर काम जरूरी नहीं है कि वो ठीक तरह से कर सके, तो अगर वो अपने काम का कुछ हिस्सा किसी और से करवा लेता है, तो जो हाई प्रायोरिटी काम होता है उसके ऊपर वो मैनेजर अच्छे से ध्यान दे सकता है। सो इट विल बी, द मैनेजर विल बी एबल टू एक्सटेंड देयर एरियाज ऑफ ऑपरेशन। और इसके अलावा जब सबॉर्डिनेट को किसी काम करने की अथॉरिटी मिलती है, तो इससे क्या होगा? सबॉर्डिनेट के अंदर भी जॉब सेटिस्फेक्शन की फीलिंग जाग उठेगी। ही विल बी सेटिस्फाइड बाय हिज जॉब, उसको रिकग्निशन मिलेगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेवलप करने की, ग्रो करने की, और वो इनिशिएटिव लेने लगेगा काम करने के लिए। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ये मैनेजर को सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने में हेल्प ही नहीं करता, लेकिन ये भी देखना कि वो अकाउंटेबल रहे कि जो भी टास्क दिए गए हैं वो ठीक से परफॉर्म हुए हैं या नहीं। So in this sense, when you talk about delegation, there are three main elements of delegation. एक होता है authority, एक होता है responsibility, और तीसरा होता है accountability. So what do you mean by these three elements? These are the elements of delegation. The very first element is authority. It refers to right of an individual to command his subordinate and take action
विद इन हिज स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। सिंपल, अगर मुझे आपको कोई भी पनिशमेंट देनी है, ठीक है, तो मेरे पास वो हक है कि मैं आपको पनिश कर सकती हूँ, बट ऑब्वियस है कि मेरे हक में जितना हो सकता है उतने लेवल तक का ही मैं आपको पनिशमेंट दे सकती हूँ। जैसे कि कोई आंसर है, मैं आपको 10 बार लिखवा सकती हूँ, ठीक है, या फिर मैं आपको पनिशमेंट दे सकती हूँ कि आप एक पीरियड के लिए नीचे जमीन पे बैठ जाओ, ठीक है। सो व्हेन आई एम हैविंग द राइट टू गिव यू कमांड, टू गिव यू ऑर्डर, and whenever you are doing any mistake, I can take actions against you, that is termed as authority. So it refers to the right of an individual to command his subordinate and take action within the scope of his position. उसके पोजीशन में जितना, उसके अंडर में जितना होगा उतने ही हद तक का वो एक्शन ले सकता है। जैसे अगर स्कूल से आपको निकालना है तो दैट डिसीजन आई कैन नॉट टेक, बिकॉज वो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको स्कूल से निकाल सकती हूँ या नहीं। मेरी अथॉरिटी कितने तक है, सिर्फ विद इन दी क्लासरूम, विद इन दी क्लासरूम इन ऑर्डर टू मेंटेन योर डिसिप्लिन, वॉट एवर एक्शन आई वॉन्ट टू टेक आई कैन टेक, जो क्लासरूम तक ही सीमित रहेगी। आपको स्कूल से निकालना नहीं निकालना वो डिसीजन मेरा नहीं है, बिकॉज मेरे पास उतने लेवल की अथॉरिटी नहीं है। सो वॉट एवर डिसीजन एक्शंस आर टू बी टेकन, विद दैट विल बी टेकन विद इन दी स्कोप ऑफ दी पोजिशन ओनली। सो इससे अथॉरिटी से क्या होता है, व्हेनेवर अथॉरिटी इज गिवन टू द मैनेजर, इट गिव्स हिम द राइट टू टेक डिसीजन, पीपल्स को इन्फॉर्म करना क्या करना है और आपसे क्या करवाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कोई काम दिया है, ठीक है, तो आई हैव द राइट टू टेक डिसीजन कि मैं आपको मार्क्स दूंगी या नहीं, या किस तरह से काम करवाना है, कौन क्या काम करेगा, ये सारा डिसीजन कौन लेगा, मैं लूंगी। क्यों? बिकॉज एज अ क्लास टीचर आई एम हैविंग दैट अथॉरिटी टू डू दैट वर्क और टू टेक दैट डिसीजन। सो अथॉरिटी ओरिजिनेट्स बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। जो पोजीशन पे आप होगे उस हिसाब से आपको अथॉरिटी मिलेगी। जैसे इफ यू आर एट द टॉप मैनेजमेंट, योर अथॉरिटी विल बी हाईएस्ट, एंड जैसे जैसे आप लेवल टॉप मैनेजमेंट से मिडिल पे आते हो या लास्ट लेवल पे आते हो तो आपकी जो अथॉरिटी है वो कम होती जाएगी। सो इट इज हाईएस्ट एट द टॉप मैनेजमेंट एंड रिड्यूसेस एट इज फ्लोज डाउन। इट मीन्स दैट सुपीरियर हैज द अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट। And authority, it also helps to determine the relationship between the superior and the subordinate। जहाँ पे superior क्या expect करेगा अपने subordinate से कि जो भी decisions उनको दिए, जो भी decision लिए गए हैं वो subordinate execute करे, और जो भी guidelines दिया है superior ने वो guidelines को follow करे। So authority helps in determining the relationship कि superior और subordinate के बीच में किस तरह का relation, professional relations होना चाहिए, that is determined by authority। Now the second important element of delegation is responsibility। अगर आपको कुछ काम अथॉरिटी है कुछ काम करने की, तो अथॉरिटी से आपको क्या मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म। अब मैंने अपना हक जमा के आपको एक काम दे दिया, अब वो काम करना किसकी जिम्मेदारी है, एज अ स्टूडेंट इट इज योर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म वॉट एवर वर्क हैज बीन असाइन्ड बाय योर टीचर टू यू। सो responsibility is nothing but the obligation of a subordinate to perform the assigned duty efficiently। it is an obligation, ठीक है, ये जरूरी है कि आपको करना ही पड़ेगा। सो ये responsibility कहाँ से arise होती है, it arises because of the superior and subordinate relationship। it binds the subordinate to perform whatever duty has been assigned to him by the superior। जैसे हमने authority में देखा कि authority से relationship determine हुआ है, ये रिलेशनशिप के वजह से ही सबऑर्डिनेट की क्या जरूरत है कि जो भी ऑर्डर्स उसको दिए गए हैं, जो भी कमांड उसको दिए गए हैं सुपीरियर के पास से, वो उनको किसी भी तरह से पूरा करना ही है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो क्या रहेगा, इट फ्लोज अपवर्ड। अथॉरिटी कैसा आ रही थी, अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो था, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा है, सो इट इज फ्लोइंग डाउन। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से जाएगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करना, किसके तरफ, सुपीरियर्स के तरफ। सो द फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी अपवर्ड, दैट इज ही विल बी ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू हिम, सबऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू द सुपीरियर। एंड इवन एक और चीज भी ध्यान इसमें रखने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी गिवन द डिग्री ऑफ अथॉरिटी विच इज नेसेसरी टू कैरी आउट द असाइन जॉब। इसका मतलब जो भी अथॉरिटी आप ग्रांट कर रहे हो, इट मस्ट कमेंसरेट विद द असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी मैंने आपको काम तो दे दिया, लेकिन कोई डिसीजन लेने का अगर मैंने आपको अथॉरिटी नहीं दिया तो आप वो काम कर ही नहीं पाओगे। इन शॉर्ट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दी अथॉरिटी।
विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विथ ऑथोरिटी. एक बार आपने ऑथोरिटी डेलीगेट कर दिया, सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल हो गए या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर दिया, तो इससे क्या राइज होता है? अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मतलब अब मुझे मेरा काम करना है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी मुझे काम एज अ सबऑर्डिनेट जो भी मुझे काम दिया गया है वो मैं ठीक तरह से कर सकूं. सो दैट इज टर्म्ड एज अकाउंटेबिलिटी. इट मीन्स बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम. Superior will be accountable to the top management. Similarly, subordinates will be accountable to the superior. Subordinate will be answerable. कुछ भी काम हुआ है नहीं हुआ है, जो भी फाइनल आउटकम है, इसका जवाब वो किससे देगा? सबऑर्डिनेट किसे देगा? सुपीरियर को. सिमिलरली सुपीरियर्स को जो टास्क दिया गया है वो उन्होंने पूरा किया है या नहीं, ये जवाब किसको दिया जाएगा? टॉप मैनेजमेंट को. सो अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो विल बी फ्लोइंग अपवर्ड. सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल टू सीनियर, सीनियर अकाउंटेबल टू द टॉप मैनेजमेंट. हाउएवर ये अकाउंटेबिलिटी आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, इट कम्स विद इट. सबऑर्डिनेट के पास हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करेंगे कि रेगुलर फीडबैक, जो भी काम किया गया है वो रेगुलर फीडबैक मिले, और अगर कोई भी उससे गलती होती है, ओमिशंस होती है या एरर्स होते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये हम सबऑर्डिनेट्स को बताना चाहिए. So we can say that authority is delegated, responsibility is accepted, and accountability is imposed. The responsibility is the outcome of authority and accountability is the outcome of responsibility. So all three are very important elements of delegations. Thank you.